ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے اس سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ہے مجاہدین ختم نبوت اور مولوی حضرات نے جو ایک کورس کروایا کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے رد قادیانیت کورس۔ اس کورس کا انشاءاللہ ہم مدلل جواب اپنے اس پروگرام میں دینا شروع کریں گے، اور اگرچہ اس سے پہلے بھی مختلف جو پلیٹ فارم ہیں اس میں ہم نے مختلف احمدیوں نے جوابات تو دیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید باقاعدہ کورس کو لے کر اس کا سٹیپ بائی سٹیپ شاید جواب ممکن ہے دیا گیا ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ جو کورسز ہیں پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ خاکسار مزید آگے بڑھے، یہ بتلانا چاہتا ہے یہ جو کورسز ہیں یہ دراصل مولوی حضرات کی دار روٹی جو ہے وہ یہ کورسز ہیں، یہ کہہ لیں وہیں پہ یہ اپنے مجاہدین تیار کرتے ہیں، اپنے چیلے چانٹے تیار کرتے ہیں، اور پھر وہیں سے ان کی روٹی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو آج کا پروگرام ہے اس میں حسب معمول ہمارے دو حصے ہوں گے اس پروگرام کے۔ جو پہلا حصہ ہوگا اس میں ایک تو جیسے کہ خاکسار نے عرض کیا ہے، ایک شبان میڈیا جو ہے جس کا آپ نے سنا ہوگا، جس کا جو کرتا دھرتا یا یہ کہہ لیں جس کا جو فیس جو لوگ جو پہچانتے ہیں وہ ہے عرفان محمود برق۔ عرفان محمود برق جس تنظیم سے منسلک ہے وہ ہے شبان میڈیا۔ انہوں نے گزشتہ دنوں اسی ختم نبوت کورس سے متعلق 3 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں اپنی ویب سائٹ پہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار ان کی وہ جو 3 ویڈیو ہیں اس میں سے پہلی ویڈیو کے پہلے تقریباً 30-40 منٹ کا جواب دے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور جب میں مزہ آئے گا کہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا اس لیے سے کہہ رہا ہوں، ہم یہ تو خاکسار خود میں آپ کو اپنی ذاتی بتا رہا ہوں، ہم یہ سنتے رہتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اور سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، لیکن شبان میڈیا والوں نے اگرچہ اپنی طرح سے ہاتھ ہولہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی ایسی دھوکہ بازیاں کی ہیں عوام کے ساتھ، ایسے جھوٹ بولے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور ان کے اپنے کورس کی وجہ سے جب ہم آپ کو انشاءاللہ دکھلائیں گے، شبان میڈیا والے خود کافر ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آج کا پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں حسب ساقبک آج کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں ہم سوالات لیں گے، اور شبان میڈیا والے میں نے ان کو میسج بھیج دیا تھا، اگر وہ اس بارے میں جو خاکسار نے باتیں بیان کی ہیں اگر ان کا کوئی سوال ہو تو ہم ان کو پہلے لیں گے، یہاں پہ آ کے پرائیویٹ میں لکھ دیں کہ میں شبان میڈیا کی طرف سے ہوں۔ تو بہرحال یہ جو آج سے ہم پروگرام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں رد قادیانیت کورس کا، خاکسار نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتلایا ہے، آج ہم جو شبان میڈیا ہے جو کہ ایک بریلویوں کی یہ کہہ لیں کہ ایک تنظیم ہے، ان کے انہوں نے گزشتہ دنوں ایک جو ہے وہ 3 روزہ بلکہ 3 ویڈیوز بلکہ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اپلوڈ کی تھیں۔ آج ہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی جو پہلی ویڈیو ہے اس ویڈیو کا جو کچھ حصہ ہے اس کا ہم جو ہے مدلل جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس سے پہلے کہ خاکسار ان کی اس ویڈیو کا جواب شروع کریں، میں آپ کو یہ دکھلا بھی دیتا ہوں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، تاکہ دوستوں کو اندازہ ہو جائے کہ اور جو ہے کہ یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، جو عرفان محمود برق ہے وہ اس تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔ یہ آپ کو میری سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ جی جی۔ اچھا،
जी जज़ाकल्लाह। ये प्यारे भाइयों, ये शबान मीडिया है जी, इन्होंने ये वीडियोस अपलोड की थी, ठीक है, 3 वीडियोस हैं, ये 8 अप्रैल 2022 को। और मैं जल्दी से उनकी जो दिखा देता हूँ कि ये स्लाइड्स वगैरह जो हैं, खाकसार ने ये कोशिश की है कि इन्होंने जितनी स्लाइड्स वगैरह अपने प्रोग्राम में चलाई हैं, इन स्लाइड को बाकायदा दिखलाकर, ठीक है जी, और इनकी वो ऑडियोज़ के हिस्से जहाँ पर इन्होंने डंडियाँ मारी हैं, वो हम अल्लाह ताला के फजल से आपके सामने उन स्लाइड्स को दिखलाकर और इनकी ऑडियोज़ को सुनवा कर फिर हम आपको जो है वो उसका जवाब दें, ताकि जो है आप दोस्तों को ना सिर्फ ये कि ये साथ साथ आपको ये हो कि हमने जो कहते हैं ना कि आप दुश्मन कह लें या उनको ये कह लें कि मुखालफीन की जो उन्होंने बातें इस्लाम के अंदर तोड़ मड़ोड़ पैदा करके ये झूठे तौर पर बातें बनाई, ये कादियानियत कोर्स के अंदर, और अवाम को गुमराह करने की कोशिश किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की उन स्लाइड्स के ज़रिए से ना सिर्फ ये कि उनके झूठों को ज़ाहिर कर रहे हैं, ज़ाहिर व बाहिर कर रहे हैं इंशाल्लाह, बल्कि वो जो है कहते हैं ना उल्टा देना, आज सारी बातें इनके ऊपर उलट रही हैं, और ये उन लोगों में आज इंशाल्लाह साबित होंगे जो ना सिर्फ ये कि जो तहरीफ करते हैं कुरान पाक के अंदर, बल्कि खुद अपनी जो तारीफ़ें हैं उनके मुताबिक ये जो हैं वो काफिर साबित होंगे। हम नहीं कह रहे, इनकी अपनी तारीफ़ें हैं। बहरहाल इन प्रोग्रामों का जो एक मकसद है, जिस तरह खाकसार ने अर्ज़ किया, वो ये भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असदक़ुस सादिकीन, हमारे आका और मौला, उनके ये लोग पैरोकार नहीं हो सकते। ये भी आपको दिखलाना है। इस कदर झूठ, इतनी ढिठाई के साथ झूठ, ये हमारे प्यारे नबी के पैरोकार नहीं बोल सकता। ये पता नहीं जो है वो किसके पैरोकार हैं। एक तो अपनी पेट की पुजारी हैं, दूसरा जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है, शुरू में कुरान पाक के शुरू में, कि वो अपने शैतानों की तरफ जब जाते हैं तो ये शैतानों के पैरोकार हैं, लोग हैं। बहरहाल ये जो खत्म नबूवत का जो आज हम कर रहे हैं रद्द कादियानियत कोर्स, इससे आप देखेंगे ना सिर्फ ये, जैसे कि मैंने अर्ज किया कुरान पाक के ये लोग मुखालिफ हैं, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि ये लोग खुद साख्ता तारीफें गढ़ते हैं जी, और फिर जब इनकी तारीफ अल्लाह के फजल से इनके ऊपर उलट पड़ती है तो फिर ये गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। अब देखें ना, मैं मिसाल से आपको समझाता हूँ। फुटबॉल का मसलन मैच है, हॉकी का मैच है, 2 टीमें होती हैं, दोनों के अपने, एक उनका अपना गोल होता है, एक उनके मुखालिफ का गोल होता है। कवायद ज़वाबित होते हैं, उन कवायद के मुताबिक जो टीम जो है वो गोल कर ले उसका पॉइंट हो जाता है। लेकिन ये मौलवी हज़रात क्या करते हैं, ये खुद ही कायदा बनाएंगे। जब इनका कायदा फेल हो जाए, उसका इतलाक इनके ऊपर बुरी तरह हो जाए, तो ये या तो गोल पोस्ट चेंज कर देंगे, उसको उठा के उधर कर देंगे, बिल्कुल कुरान पाक से हट के कोई तारीफ को ले आएंगे, कोई और कायदा कुलिया ले आएंगे, या अपना गोल पोस्ट खत्म ही कर देते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में इन्होंने किया हुआ है, जो 1974 की इन्होंने तरमीम की, कि उसमें बाकायदा ये लिख कर कि जो कादियानी ग्रुप या अहमदी ग्रुप या और लाहौरी ग्रुप, इन्होंने गोल पोस्ट इस तरह से तब्दील किया कि अपने आप का अपना गोल खत्म ही कर दिया कि हमारे खिलाफ जी स्कोर हो ही नहीं सकता। तो ये तो इनकी हालतें हैं। अच्छा, बहरहाल चलते हैं जी आज के जो रद्द कादियानियत कोर्स जो हमने आपको दिखलाना है उसकी तरफ। और शुरू में ही मैं शुरू करूंगा इनके जो टाइटल्स हैं जो इस प्रोग्राम का, वहां से एक मिनट में वो टाइटल जो है वो ले आऊं। अच्छा, मैं एक मिनट उसको दोबारा खोल लूँ, वो तो कहीं से बंद हो गया वो। ये जो आप देखेंगे प्यारे भाइयों, ये जो टाइटल है इनका, इन्होंने प्रोग्राम में लेके आए, इसके शुरू में आपको ये टाइटल है, मैं इसको दोबारा शेयर कर दूं। मैं दिखाना आपको ये चाहता हूँ टाइटल से कि ये लोग धोखाबाजियां कैसे करते हैं जी। अच्छा जी, ये है जी टाइटल, ये नजर आ रहा है दोस्तों को? जी जी नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें, ये है जी इनकी वीडियो का टाइटल।
अब इस टाइटल को कोई भी जो हमारा गैरहमदी भाई वो जब देखेगा तो वो कहेगा जी सुभान अल्लाह जी, मौलवी साहब ने तो खुतबे नबूवत के ऊपर कोई झंडे गाड़ दिए हैं जी। एज यूजुअल ये देखें, शबान मीडिया का नाम भी लिखा हुआ है। और एज यूजुअल जो कहना चाहता था, बड़ी मशहूर हदीस, अना खातिमुन नबी डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा अगर जूम कर दें ताकि साफ नजर आए। जी मैं इसको जूम कर देता हूँ, मुझे बल्कि आप ना याद कराते रहिएगा, मैं जरा जूम हमेशा भूल जाता होता हूँ। आप नजर आ रहा है? मैक्सिमम पे कोशिश करें हो जाए ताकि अभी भी कुछ थोड़ा सा ना। अच्छा, ये चूंकि मैं पूरी स्लाइड, चले मैं इसको मैक्सिमम इतना करता हूँ कि ये स्लाइड इनकी नजर आ जाए। ये देखें जी, अब मैं हाँ इससे जी, ज्यादा आप ठीक। अच्छा अच्छा, ये देखें प्यारे भाइयों, ये है जी इनकी स्लाइड, टाइटल स्लाइड। और इसमें हस्बे साबिक जो तमाम मौलवियों की आदत है, इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस ऊपर पेश की है और तसर यूं देने की कोशिश की है कि गोया इस हदीस के ऊपर इनका बड़ा सहारा है। और अब हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से खुद इन्होंने अपने मुंह से इस हदीस का जो मतलब है उसको धतकारा है और अपनी जो तारीफें हैं खुद साख्ता उसकी तरफ दौड़े हैं। ठीक है जी। फिर ये कहते हैं जी ये ख़त्म नबूवत, अहमियत व फजीलत, दलाइल ख़त्म नबूवत। ठीक है जी, ये इनका ये कह लें कि टाइटल है जी मेन। और ये साथ साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, अगर आपको नज़र आएगा, आपको साथ साथ जब मैंने इमेज लिया है तो साथ ये मिनट भी साथ ये शो कर रहा है। पहले 7 मिनट इन्होंने सिर्फ टाइटल ही चलाया है, बोले नहीं है कुछ। ठीक है जी। अच्छा आगे चलें जी। अब इन्होंने कोर्स का आगाज़ किया जी। इन्होंने शुरू में आयत खातमुन नबीयीन पढ़ी एज यूजुअल, जिस तरह के मौलवी हज़रात करते होते हैं। फिर हदीस पढ़ी, अना आखिरुल अंबियाए व अंतुम आखिरुल उमम। ठीक है जी। दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ा, बहुत अच्छी बात है, हम भी पढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं जी आज का जो मौजू है वो मौजू बताया इन्होंने। और फिर ये पहुंचे हैं कि इस्लाम जो है इसके बारे में ये जो तमहीदी बातें कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको क्यों ये दिखा रहा हूँ ये स्लाइडें, मौलवी हजरात की ये पुराना ये वतीरा है, बल्कि एक है मुनकरीन अंबिया का, कि ये जब बात करेंगे शुरू तो ये अच्छी बातों के अंदर जब अवाम जो है वो मशहूर कुन हो जाए कि जी बड़ी अच्छे मौलवी साहब बातें कर रहे हैं, तो ये ऐसी ऐसी बातें उसके अंदर फिर ऐड करते हैं कि अवाम को पता ही नहीं चलता, मौलवी साहब अपना वो करतब कर जाते हैं मिडल में। ये इसलिए मैं आपको आप उनका सारी स्लाइडें दिखा रहा हूँ कि इन्होंने किया क्या है। अच्छा जी, कहते हैं जी इस्लाम दो चीज़ों का मजमूआ है, बिल्कुल ठीक है जी, अकीदा और अमल। फिर कहते हैं कि जो जिस तरह कुरान पाक की उन्होंने आयत पढ़ी, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, तो कहते हैं जी आमनू से मुराद है अकीदा और अमल जो सालिहात से मुराद है अमल, बिल्कुल ठीक है जी। और फिर उन्होंने वो बातें की कि जी आखिरत की कामयाबी का दारोमदार इन्हीं दो चीज़ों पर है, जन्नत का वही हकदार होगा जिनकी ये दोनों बातें जो हैं वो ठीक होगी। चलें, बहुत अच्छी बात है, हम तो इस बात को मानते हैं, हमारा तो आपके साथ इस बारे में कोई इख्तलाफ ही नहीं है। फिर चलते हैं जी इनकी अगली स्लाइड की तरफ। कहते हैं जी हम आपको अकीदा और अमल में फ़र्क दिखाते हैं। और इस हेडिंग के अंदर उन्होंने कहा जी कि ठीक, बात भी ठीक है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादा अहमियत अकायद की है, क्योंकि अकीदा बुनियाद की हैसियत रखता है। अगर इमारत में जो अहमियत कहते हैं जो बुनियाद की है वही अकीदे की है मज़हब में, बिल्कुल ठीक बात है जी। और कहते हैं अगर किसी का अकीदा कमज़ोर हो जाए तो पूरी इस्लाम की इमारत उनकी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मज़े की बात यह है, ये अकायद के ऊपर यहाँ पर आपने देखा होगा मौलवी हज़रात बहुत ही ज़ोर दिया करते हैं, और लेकिन ऐसी ऐसी डंडियाँ मिडल में मारते हैं कि अल्लाह की पनाह। ये बता दिया, बहुत अच्छी बात है जी, आपने बता दिया आवाम को। अच्छा, कहते हैं जी इस्लाम में, अब ये मौलवी साहब का तकरीबन 12 मिनट है इनके जो जहाँ पे इस वीडियो के, कहते हैं जी इस्लाम में अकीदे की बहुत अहमियत है। इस हवाले से मौलवी साहब फरमा रहे हैं जी कि कोई चंद ज़रूरी बातें हैं जो समझनी चाहिए ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। मसलन फिर उसके बाद वो लेके चले हैं जी इस चार्ट की तरफ आगे बढ़े हैं। कहते हैं जी मैं चार्ट के ज़रिए से आपको बताता हूँ इस्लाम में जो अकायद की अहमियत है। और इस ज़मीन में मौलवी साहब ने फरमाया कि जी अकायद जो हैं आमाल में, अब मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर कर दूंगा, लेकिन जिसने दोस्त ने देखना है वो पूरी वीडियो सुन ले। कोई बात इंशाल्लाह आप देखेंगे ऐसी नहीं होगी जो कि इन्होंने मौलवी साहब ने, यानी मैं बयान करूँ और मौलवी साहब ने ना कही हो। ये हो सकता है मैं कोई बात छोड़ दूँ, लेकिन पूरा मजमून यही है जिस तरह से इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं लोग।
कहते हैं जी कि अब ये 13 मिनट 10 मिनट पे कहते हैं जी अकायद में कमी बेशी नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है। और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि इम्तिहान में एक मखसूस नंबर लेने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है जी। कभी ऐसा नहीं होता कि 100 नंबर कहे जी कि आप 100 नंबर लोगे तो फिर पास हो गए, लेकिन मौलवी साहब ने फरमाया कि अकायद के अंदर ये बात है कि 100 में से 100 नंबर लेंगे तो आप पास होंगे, ठीक है जी। दूसरी बात इन्होंने ये बयान की कि अकायद सब के एक जैसे होते हैं, ये भी तकरीबन वही बात है कि जी ये अब मसलन आप कोई कहे कि उन्होंने बयान किया कि जी अकीदा तौहीद वो आपका 100% है या आपका 90% है, तो हर बंदा कहेगा नहीं जी मेरा 100% अकीदा तौहीद है, रसालत भी जी 100% है। एक बहुत ही अहम बात मौलवी साहब ने यहाँ पे बयान की तीसरी, और वो ये कि अकीदा छोड़ने से कुफ्र लाज़िम आता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसकी वजह ये है कि मौलवी साहब ने ये सबक तो पढ़ा दिया अपने लोगों को, लेकिन जैसा कि आज हम आपको दिखलाएंगे मौलवी साहब खुद अपना अकीदा जो है इन्होंने छोड़ा। अकीदा छोड़ने से क्या मुराद है? अकीदा की बुनियाद कुरान पाक होती है, सबको पता है। अब आप देखेंगे कि मौलवी साहब जो हैं लोगों को गुमराह तो कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक की तरफ मजाल है ये गए हों। इन्होंने और जब गए भी हैं तो कुरान पाक से मुतल्लिक बड़े बड़े झूठ बोले हैं, वो अब आपको इनकी ऑडियो से सुनवाएंगे इंशाल्लाह, है जी। चलें जी, 3 बातें होंगी। अकायद जो है इसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती, अकायद सबके एक जैसे होंगे। फिर कहते हैं अकीदा छोड़ने से कुफ्र लाज़िम आता है, बहुत अच्छी बात है जी। अमाल में कहते हैं कमी पेशी हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यही मैंने कहना कि ये जो हजरात हैं ये अच्छी बातें जब बयान करते हैं, नतीजा अखज़ करवाते हैं अवाम के सामने, और फिर अपनी तरफ से वो बातें फिर ऐड करते हैं कि अवाम को पता ही नहीं चलता कि मौलवी साहब जो हैं ये क्या कर गए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं वो ये है कि इस्लाम में अकायद की क्या अहमियत है, ये मौलवी साहब हमें बता रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले खाकसार आपको इन मौलवी साहब की एक ऑडियो भी सुना देता है, ताकि इनकी भी थोड़ी सी आवाज़ जो है वो आपको पता चले। ये ना हो कि मैं सिर्फ अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ। ये मुबारक भाई ज़रा मुझे बता दीजिएगा आवाज़ आ रही है आपको? और इसके साथ हमें ये बात समझ आती, आवाज़ आई है साहब? जी 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 बिल्कुल आ रही। ठीक है, चले अब मैं जी ये मौलवी साहब की यहाँ पे इन्होंने ये इस प्रोग्राम के कोई 16 मिनट के ऊपर इन्होंने ये अवाम को ये सबक पढ़ाया है, सुने जरा। और इसके साथ हमें ये बात समझ आती है कि अगर एक शख्स मुसलमान है या काफिर है, इसके लिए हमें उसके अकीदे को देखना पड़ता है। इस्लाम को फर्क का मेयार उसके अकीदे पर बनाते हैं। अगर उसका अकीदा ठीक है तो मुसलमान है, चाहे अमल में कमजोर हो, और अकीदा ठीक नहीं है तो वो काफिर कहलाएगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा अमल कर ले। क्योंकि याद रखिएगा उसूल क्या है, उसूल ये है कि अकीदा ठीक ना हो तो अमल भी किसी काम नहीं आता, अमल भी काबिल कबूल नहीं होता। इंसान जितना मर्जी अच्छे अमल कर ले, लेकिन अगर उसका अकीदा ठीक नहीं है तो उसके वो अच्छे अमल किसी काम नहीं आएंगे। जी मेरे भाइयों, ये बड़ा ही काम का जी इन्होंने असूल बताया है, और जैसे जैसे हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह ये पता चलेगा कि ये साहिब जो कि हमें ये असूल पढ़ा रहे थे, ये खुद इतने बेअसूले लोग हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि इन्होंने खुद ही ये असूल तोड़े और अपने अकीदा के अंदर जो है वो इन्होंने तब्दील किया। और जब तब्दील किया तो इनका अपना जो खुद ही इन्होंने बता दिया है कि अगर किसी के अकीदे में गड़बड़ हो जाए तो वो क्या होगा, नंबर 1 उसके ऊपर कुफर लगेगा, ठीक है। दूसरा उसके अमाल 0, ठीक है जी। चले इसके बाद मौलवी साहब जो हैं ये आगे गए हैं जी। इन्होंने ये स्लाइड, ये बुनियादी अकायद के अंदर मैं एक स्लाइड ये जनाब इन्होंने एक स्लाइड दिखाई, और इन्होंने ये कहा, वाज़े किया कि ये जो ज़ीरोज़ हैं ये सारे हमारे अमाल हैं, और जब तक अमल, ये समझे अमल जो है वो इकाइयाँ हैं, सॉरी जो आपका अकीदा है वो इकाइयाँ हैं। जब तक अकीदा साथ ना लगे अमल जो है वो 0 है। कोई बात नहीं जी, ठीक बात है। लेकिन जो मैंने बात की है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते करते, ज़बरदस्त जनाब बातें करते करते, फिर मौलवी साहब जो हैं उन्होंने अकीदे को ऐसे छोड़ा है कि अल्लाह की पनाह। बहरहाल आगे चलते हैं जी। अब वो मौलवी साहब की दूसरी ऑडियो में सुनाता हूँ जिसमें ये लोगों को ये तलकीन कर रहे हैं कि हमने अकीदे को पकड़ के रखना है,
और गोया बस अकीदा हमारा जो छूट गया किसी का तो बस उसका तो ना सब कुछ ही ख़राब हो गया। क्यों करते हैं? करते इसलिए मेरे भाइयों कि अवाम ये सोचे कि जनाब मौलवी साहब जो इतने पक्के पक्के अकीदे के हक़ में इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता कि मौलवी साहब जो हैं वो खुद अकीदे के कमज़ोर हों। भी जो बंदा खुद कह रहा है कि अकीदा अगर ना हो तो सब कुछ ख़त्म, अमाल भी ज़ीरो, ये तो नहीं हो सकता कि दूसरे मिनट में ही वो बंदा अपना अकीदा जो है उसमें गड़बड़ कर दे। लेकिन मौलवी साहब आप देखेंगे इन्होंने की, इनकी ऑडियो सुने, फिर हम आगे चलते हैं। ये जनाब इन्होंने ऑडियो दी है अपनी वीडियो के 18 मिनट और 15 सेकंड पे। जिस दोस्त ने सुनना हो मैं लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह अपनी वीडियो के नीचे, बेशक जाके इनकी जो है पूरा प्रोग्राम सुन लें। ये जी ऑडियो सुने मौलवी साहब की। कोशिश करना है कि हमारा अकीदा भी ठीक रहे, हमारा अकीदा भी मजबूत रहे, फिर उसके बाद हमने अमाल करने हैं। अकीदे की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। खुदा न खास्ता अकीदे में अगर ज़रा भी खराबी आ जाए, ज़रा बराबर का नुक्स आ जाए, यहाँ तक उलमा फरमाते हैं कि 100/100 अकीदा है, उसमें 1% भी कमी आ जाए, 99% आपके हैं ठीक है, 1% खराब हो गया है, तो वो 1% भी बाकी पूरे 99 को खराब कर देगा और बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हमने इंशाल्लाह अपने अकीदों की हिफाजत करनी है, अकीदों पर पहरा देना है इंशाल्लाह, और सारी जिंदगी अल्लाह ने मुझे आपको अमाल के लिए दी है, अमाल आगे करते जाना है इंशाल्लाह। जी मेरे भाइयों सुना, मुबारक भाई आप भी सुन रहे हैं? 99 में से जी मुबारक भाई जी 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 बिल्कुल कहते हैं 99 में से अगर एक बात भी अकीदा से मुतल्लक गड़बड़ हो जाए तो अकीदा ना सिर्फ अकीदा गया बल्कि आप काफिर हो गए। मौलवी साहब की बात आपने सुन ली। अब इस ये बड़ी ही काम की बात है, क्योंकि यही मौलवी साहब, यही शबान मीडिया अपनी ये जो आगे इन्होंने हरकतें की हैं उस वजह से खुद अपने इस असूल के मुताबिक काफिर होने जा रहे हैं। ठीक है जी, अकीदा की अहमियत तो आपने बता दी लोगों को, बहुत अच्छी बात है, और सबक भी पढ़ा दिया अपने लोगों को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मौलवी साहब मेरी इनसे भी गुजारिश है और अपने गैर अहमदी भाइयों से भी बड़ी ही प्यार से मोहब्बत से, कि जब मौलवी हजरात आपको ये इस तरह की प्यार मोहब्बत वाली और लोपापाती किया करें तो ज़रा नोट किया करें मौलवी साहब वहाँ उसके बाद करने क्या लगे हैं। आप बेचारे मस्त हो जाते हैं यार, मौलवी सच ही कह रहे होगा, और मौलवी साहब अपने काम दिखा जाते हैं, है जी। बहरहाल जी ये इनका यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद मौलवी साहब ने इनकी स्लाइड नंबर 6 थी वो लगाई, मैं वो स्लाइड आपको दोबारा दिखाता हूँ और फिर इसके बाद आगे चलते हैं जी कि इन्होंने क्या वहाँ पे किया। ये थी जी इनकी स्लाइड। कहते हैं जी बुनियादी अकायद जो हैं इस्लाम के वो ये 3 हैं, तौहीद, रसालत और क़यामत। आज का जो मौजू है वो कहते हैं जी रसालत से मुतल्लिक है, और रसालत का उन्होंने ये बताया कि अकीदा ये है कि अल्लाह ताला जो है उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए नबियों का सिलसिला शुरू किया है और ये अल्लाह का इंतखाब है, बंदों का नहीं है। फिर फरमाते हैं नबी मासूम होता है और गुनाह उसके करीब नहीं आता। ठीक बात है जी। कहते हैं जी 1,24,000 अंबिया का इंतखाब हुआ, और इन्होंने कहा कि इनमें से पहले हज़रत आदम और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है जी, अभी मैं आपको ऑडियो भी सुनाऊंगा। आखिरी पहले हज़रत आदम और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने, इनकी मैं एक और ऑडियो सुनाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ क्या किया है। मौलवी साहब ये बोलते बोलते इन्होंने कहा है कि जो अकायद हैं, जितने भी अकीदे हैं वो रसूल के तवस्सुत से मिलते हैं। गड़बड़ क्या की है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी, आप के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब नाज़िल फरमाई, कुरान पाक। ठीक है जी, लेकिन आपकी अहादीस का मजमूआ भी इकट्ठा हुआ है। अब ये मौलवी साहब जानबूझ के गड़बड़ कर गए हैं कि रसूल के तवस्सुत से मिलते हैं, कि ताकि वो बेशक फिर ये कहने के बाद अवाम का जहन चला जाएगा रसूल के तवस्सुत से, तो फिर ये अहादीस भी बेशक ऐसी लेके आते रहें जिनसे ये अपने मुताबिक निकालना चाहिए, तो अवाम कहेंगी ओहो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से बात हो रही है। और ये बात मौलवी साहब बताना भूल गए कि जनाब जो अकीदा है, अकीदा वो कुरान पाक से लिया जाता है, अकीदा कुरान पाक से लिया जाता है। पूरे इस प्रोग्राम में मौलवी साहब ने ये बात नहीं की। क्या ये लोगों को धोखा देने वाली बात नहीं है? आप अकीदे की अहमियत तो लोगों को बता रहे हैं, आप ये बताना भूल गए कि अकीदा कुरान पाक से लिया जाता है। अच्छा, फिर अब मैं इनको मौलवी साहब की जो
اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں اور آپ کو یہ والی ان کی اگلی سناؤں آڈیو جو ہے ان کی جو سوری ان کی سلائیڈ اس سے متعلق کچھ دکھاؤں. مولوی صاحب نے اس بارے میں جو ایک آڈیو دی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ہے ان کی آڈیو نمبر 3 اور یہ انہوں نے دی ہے وہاں پر تقریباً 20 منٹ پر. ٹھیک ہے جی, یہ سنیں ذرا. ہمیں جتنے بھی عقیدے ملتے ہیں وہ رسول کے توسط سے ملتے ہیں. ہم مسلمان اپنی مثال لے لیتے ہیں. صرف ہمیں توحید کا عقیدہ ملا تو رسول کے صدقے ملا. ہمیں قیامت کا عقیدہ ملا رسالت کے صدقے ملا. ہمیں قرآن پاک کا عقیدہ ملا تو رسول کے صدقے ملا. ہمیں جو جو عقیدہ ملتا ہے وہ رسالت کے صدقے ملتا ہے. جی, اب دوست ذرا میری اس بارے میں رہنمائی فرما دیں, یہ قرآن کے عقیدہ سے ان کی کیا مراد ہے؟ کسی دوست کو سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں قرآن کا عقیدہ ملا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں یہ اتنی بڑی اہم بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک دیا, بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن وہ قول رسول نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اور جب عقیدہ جو ہے اس کی نس لی جائے گی, جب عقیدہ کی بات ہوگی تو اس کی جڑ کہاں پہ ہوگی, اس کی بنیاد کہاں پہ ہوگی؟ قرآن پاک میں. جب آپ قول رسول کہیں گے تو اس سے تو حدیث بھی مراد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ انہوں نے کیا جناب, یہ ایک ڈنڈی ماری وہاں پہ, بہت بڑی ڈنڈی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. اور پھر مولوی صاحب اس کے بعد آگے چلے ہیں, انہوں نے وہاں پر سلائیڈ نمبر 7 یہ والی پیش کی. ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ سلائیڈ پیش کرنے کے بعد یہ جو آڈیو دی ہے یہ میں اس لیے آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, آڈیو نمبر 4 آج کے پروگرام کی جو ان کی میں سنا رہا ہوں, کہ یہ لوگ جب تاثر دیتے, یہ جب اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں تو یہ اس طرح کے تاثر دیا کرتے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد اس سے مختلف ہیں. یہ ذرا آڈیو سنیں پھر بات کرتے ہیں. خوبی ہے, یہ آپ کی امتیازی شان ہے کہ جتنے پہلے نبی ہیں ان کو نبی کہہ دیا ایمان پورا, رسولوں کو رسول کہہ دیا ایمان پورا, لیکن حضور کو نبی رسول کہنے سے ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک کہ یہ ساتھ قید اور شرط نہ لگائی جائے کہ آپ نبی کے ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں اور آپ رسول کے ساتھ خاتم المرسلین بھی ہیں. اب انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, اسی کو ہم ختم نبوت بھی کہہ دیتے ہیں آسانی کے لیے. جی میرے بھائیو, بڑی ہی اہم آڈیو. اور مولوی صاحب یہاں پر یہ ایک تو یہ تاثر دے رہے ہیں, بالکل جھوٹا تاثر, کہ گویا یہ کوئی مولوی صاحب اور شبان میڈیا والے ایسے لوگ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یا خاتم المرسلین مانتے ہیں. جماعت احمدیہ نہیں مانتی, بہت بڑا جھوٹ ہے. حضور, ہم تو قرآن پاک کی بے سے لے کر, بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک پورے قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں الحمدللہ. اور آیت خاتم النبیین جس کو کہا جاتا ہے وہ تو قرآن پاک کا حصہ ہے. ہم کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر ایک اور بات, بڑی اہم بات, مولوی صاحب یہ مان گئے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرے اور خاتم المرسلین تسلیم کرے. ہم تو پہلے ہی مانتے ہیں, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. ہر احمدی کا یہ ایمان ہے, ہاں جی, ہمارے عقائد کا حصہ ہے. تو پھر اس اپنی ان کی آڈیو آپ کو میں نے سنائی ہے دوستو, اس کے لحاظ سے ختم نبوت کے اوپر جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایمان ہوا یا نہ ہوا, یہ اہم بات ہے. اچھا میرے بھائیو, یہ تھی جی ان کی, یہاں تک ہم بات پہنچے تھے. کہاں پر بات پہنچی تھی؟ کہ ختم نبوت پر وہ شخص ایمان لے کے آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے اور خاتم المرسلین مانتا ہے. ہم تو مانتے ہیں جناب. ٹھیک ہے. اب وہاں پر تو ان کی ظاہرہ دار نکلی. اب یہاں پر مولوی صاحب نے پھر ظاہرہ ڈنڈیاں گھمانی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کس طرح سے پھر اپنے اس پروگرام میں پھر مولوی صاحب نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھر یہ بڑے ہیں اور پھر مزید گمراہ کرنا شروع ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ابھی تک انہوں نے تقریباً باتیں ٹھیک کی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آگے چلیں.
अब यहाँ पर इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस लेकर आए कि मुझे 6 वजूहात से अंबिया इकराम पर फजीलत दी गई है। बिल्कुल ठीक बात है, कौन अहमदी है जो इसका इंकार करता है जी। अच्छा, और ये इन्होंने अगली स्लाइड दिखाई, और इसमें जो अहम बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि मुझे तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, हम तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब ये भूल गए कि ये जो बात हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे, ये इनके अपने खिलाफ चली गई है। क्यों? हम जनाब मौलवी साहब की आपको ऑडियो सुना के फिर आपको ये साबित करते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये बात मौलवी साहब के खिलाफ चली गई है। ये है जी मौलवी साहब की ऑडियो नंबर 5, और ये इन्होंने वहां पर दी है तकरीबन 24 मिनट और 30 सेकंड पर। ये जी इनकी ऑडियो नंबर 5 सुने जरा। अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक की तरफ नहीं बनाकर भेजा है। मुझसे पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए थे वो किसी खास इलाके, किसी खास कबीले, खास कौम, खास जगह, खास वक्त के लिए आया करते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम तमाम मखलूकात की तरफ, तमाम जहानों की तरफ और तमाम जमानों की तरफ नहीं बनाकर भेजे गए हैं। अब क़यामत तक सारा जमाना आपका है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखा बेटा, आप देखा प्यारे भाइयों, आपने नोट किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फजीलत दी गई है। मौलवी साहब का इकरार मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले तमाम रसूल मखसूस कबाइल की तरफ भेजे गए थे, वगैरह वगैरह। तो फिर जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हमारा सवाल ये उठता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वाले नबी नहीं है जिनके बारे में कुरान पाक की आयत मौजूद है, रसूल इला बनी इसराइल। ठीक है जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को इम्तियाजी खुसूसियत दें, और आप कौन होते हैं फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही खुसूसियत देने वाले, और उनको आप दोबारा यहाँ इस दुनिया में पहले तो गलत तौर पर कुरान पाक के बिल्कुल खिलाफ जिस्मानी तौर पर उनको आसमान पर उठवाएं, और फिर उनका नजूल करके उनको पूरी दुनिया की तरफ आप उनको रसूल जो है वो बनाकर उनको इंट्रोडक्शन करवा दें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को बिल्कुल दो नंबर मरोड़ें। ठीक है जी। अच्छा, ये बात जी। फिर उसके बाद ये मौलवी साहब जो है इन्होंने इसके बाद अगली आयत पेश की। अब ये बड़ा ही यहाँ पर जिस तरह खाकसार ने अर्ज किया था ना कि ये अच्छी बातें करते करते फिर ये वो मौलवी साहब उसमें जो है ना वो फिर गड़बड़े शुरू करते हैं। अब यहाँ से मौलवी साहब ने गड़बड़े शुरू किए। मौलवी साहब ने ये स्लाइड लगाई, और ये स्लाइड लगाने के बाद कहते हैं कि हम अगर खत्म नबूवत की एक तारीफ करना चाहें, मौलवी साहब फरमा रहे हैं, ये इस वीडियो के 25 मिनट 47 सेकंड पे कह रहे हैं, कहते हैं जी हमारे मुआशरे में 2 खत्म नबूवत की तारीफें चलती हैं। सुभान अल्लाह, हमारे मुआशरे में खत्म नबूवत की 2 तारीफें चलती हैं। आप ये मुझे बताएं, हैं जी मुबारक भाई, आप काफ़ी देर से ज़रा खामोश है, मैंने कहा आपको ज़रा पूछ लूँ, ये क्या मजहबी दुनिया में तारीफें मुआशरों की चलती हैं या अल्लाह की किताब की चलती हैं? जी बिल्कुल, ये हैरत ज़दा बात है कि जब भी आप तारीख़ अंबिया और उनके मुखालफिन की तारीख पढ़ते हैं तो उसमें ये 2 चीज़ें ही जो है वो उसमें फ़र्क पैदा करती हैं, हक़ और बातिल में। एक तो ये होता है कि जो खुदा ताला की तरफ से तालीम उतरती है और किताब उतरती है, उसकी रूह से अपने अकायद बनाते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। और दूसरे वो लोग जो मुखालफीन होते हैं और उलमा पहले के होते हैं मौजूद, ये तारीख इसकी चीज़ की गवाह है, हम नहीं कह रहे, इस चीज़ की तारीख गवाह है कि वो एक अपने ये जिस तरह ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि माशरा, वो माशरा होता है जो उन बद अकायद को लेकर उन्हीं अंबिया की मुखालफत करता है। इसका तो हमारा तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। ये तो 1,24,000 पैगंबर आए जिनकी तारीख यहाँ पे मिलती है, वो इस चीज़ की गवाह है। इसमें तो 2 राय है ही नहीं है, और वही वो बात कर रहे हैं, अपने ही खिलाफ वो गवाही दे चुके हैं कि कुरान को छोड़कर मुआशरे की तरफ गए हैं, और वो मुआशरा जो इनकी अपनी जो बेनिफिट्स हैं उनको हाइलाइट करते हैं और उनको
उनके ऊपर चलने की जो है वो राह निकालते हैं। तो इसमें तो दो राय डॉक्टर साहब है ही नहीं। जी जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये कहने के बाद कि हमारे माशरे में दो तारीफें चलती हैं, मौलवी साहब ने ये स्लाइड लगाई है, उनकी स्लाइड नंबर 10 है। क्या था, क्या लिखा हुआ है जी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब मौलवी साहब ने ये स्लाइड लगाई, फिर ये कहा कि ये तारीफ तो वैसे ठीक है, दुरुस्त तारीफ है, लेकिन मसला पड़ गया है जी। वो जो खाकसार ने अर्ज किया था ना, गोल जब इनके खिलाफ स्कोर हो जाए ना गोल, तो फिर मौलवी कहता है वो ये तो गड़बड़ हो गया, अब मैं अपना गोल पोस्ट चेंज करता हूँ। कहते हैं ये जो तारीफ है ना, इस पे अब कादियानी एतराज करते हैं। वो कहते हैं, क्या एतराज है जी अहमदियों का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी कैसे हैं, जबकि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नाज़िल होना है? बिल्कुल दुरुस्त एतराज है जनाब। अब बजाय इसके कि अपनी तस्हीह करें, हम बार बार कहा करते हैं कि जनाब मौलवी हजरात, आप जो अकीदा ख़त्म नबूवत अवाम को पढ़ाते हैं, वो अकीदा ख़त्म नबूवत, और आप जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्मानी नज़ूल बतलाते हैं, ये दोनों आपस में मुतज़ाद अकीदे हैं। अब ये वहाँ पे पकड़े जाते हैं, इनके खिलाफ स्कोर हो जाता है जनाब, और फिर भागते हैं जब इनके साथ गुफ्तगू की जाए। तो अब मौलवी साहब कह रहे हैं जनाब, इसका फरमाते हैं जी ये तारीफ तो ठीक है, लेकिन वो कहते हैं अब ये देखें, ये आपको ऑडियो भी मैं इनके सुनाऊंगा। कहते हैं ये 26 मिनट पे कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं जी अकीदा तो ये दुरुस्त है, ठीक है, ये हमारी तारीफ दुरुस्त है, लेकिन जब फितने ज्यादा हो जाएं, बहाना देखें मौलवी साहब का, और फितनों का तरीका वारदात होता है कि वो अल्फाज के हेर फेर से उठाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे, जब इन्होंने तारीफ तब्दील की है, इस तारीफ को छोड़कर जब अगली तारीफ इन्होंने की है, तो आप खुद देखें कि अल्फाज का हेर फेर कौन कर रहा है यहाँ पे। यानी कि इल्जाम हमें दे रहे हैं जमात अहमदिया मुसलमान को, और झूठ और तलबीस जो है उसके बहाने ढूंढकर और अल्फाज की हेरा फेरी खुद कर रहे हैं। ये हैं लोगों की हालतें, ये है इनकी खत्म नबूवत, ये है इनका अकीदा खत्म नबूवत। और ये देखें बड़ी एक और मज़े की बात, अकीदा खत्म नबूवत की आम तारीफ, यानी वो तारीफ जो कि ये बढ़ बढ़ के हमें सुनाया करते थे, अब जब इनके खिलाफ स्कोर होने शुरू हुए हैं तो इसको क्या कह दिया है, आम तारीफ है जी। और ये जो अपनी घर से घड़ के तारीफ लेके आए हैं, अकीदा खत्म नबूवत की मुकम्मल तारीफ। भाईजान मोहतरम, ये जो तारीफ आप हमें बताया करते थे, है जी, और वो जो आपने शुरू में जो टाइटल पे हदीस लगाई थी, अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी, वो जो हमें पढ़ाया करते थे, वो हुन आम तारीफ होगी जे, है जी, वो आम तारीफ होगी है। और आपके जो लफाजियाँ हैं जो खुद आपने घड़ के ना जो है वो कुरान पाक में इन बातों का हमें कोई मिलता है, कोई ऐसी आयत है जो आपने अपनी तरफ से तारीफ कर दी है, ना हदीस में कोई ऐसी बात है, और लफाजी हम कर रहे हैं जनाब। और फिर एक और बात, आप तो अभी आवाम को ये बता रहे थे कि अकीदा में गड़बड़ हो जाए, 99 में अगर ठीक भी हो, एक गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है दोस्तों, वो अकीदा भी खत्म और बंदा क्या हो गया, काफिर। क्यों जी साहब, दोस्तों ने सुना था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब खुद अकीदे की ये तारीफ इन्होंने अपने बुनियादी अकीदा, है जी, आगे आके बताएंगे, ये जरूरियात दीन में से है, जरूरियात दीन वाले अकीदे की आपने खुद ही तारीफ जो थी उसको, अपनी तारीफ को आम कर दिया, और बगैर किसी वजह के, यानी वजह तो हमें पता चल गई है जी, वजह तो हमें पता चल गई है। अहमदियों ने अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था ना कि मेरे फिरका के लोग इल्म व मार्फत में कमाल हासिल करेंगे और अपने दलाइल व बराहीन के जरिए से वो मुखालफिन का मुंह बंद कर देंगे। ये हुआ है असल में। जब आपका मुंह बंद हुआ है तो आपने, जाहिर है अवाम को मुंह तो दिखाना है, आपने अवाम के पास जाके पैसे भी बनाने हैं, तो अब क्या हुआ जी, तारीफ ही तब्दील कर दो। अब ये क्या फरमाते हैं जी,
कहते जी कादियानी उलझाते हैं कि हजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद आप लोग कहते हैं कि कोई नबी नहीं आएगा, तो इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे आ जाएंगे? मैंने जो आपको बताया था। कहते हैं जी इसलिए ना, जब फितने आम हो जाएं तो कहते हैं उसी अंदाज में उसकी तारीफ करनी होती है। ये देखें अवाम को किस तरह से झूठ और तलबीस सिखा रहे हैं। कहते हैं उसी अंदाज में उसकी तारीफ करनी होती है और उसको सुलझाना होता है जिस तरह के फितने हों। सुभान अल्लाह। यानी कुरान पाक को छोड़ दें और जिस तरह की आपको आगे से जवाब मिला उसके मुताबिक अपनी तारीफ तब्दील कर लें। फिर कहते हैं जी याद रखिए, जो खत्म नबूवत की असल और मुकम्मल तारीफ है जी, इस तारीफ को कह रहे हैं। और फिर कहते हैं ये हमने नहीं बनाई, एक ही सांस में कह रहे हैं कि ये 1400 साल से चली आ रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसी सांस में कह रहे हैं हमारी पुरानी किताबें जो 3-3, 4-4 या 500 साल पहले उस वक़्त के उलमा ने लिखी, उन्होंने खत्म नबूवत की ये तारीफ की है। और जनाब 300, 400, 500 थे या 1400 साल थे? आपको 300, 400, 500, 1400 साल में फ़र्क नहीं नज़र आता। और फिर ये बात है, कौन से कुरान ने आपको बताया है कि अमाल उलमा बनाते हैं? अगर वक्त के उलमा या एक नबी से और दूसरे नबी के दरमियान वाले उलमा ने अगर अकीदे बनाने हैं, अमाल सॉरी मैंने मेरा ख्याल गलती से कह दिया, अकीदे बनाने हैं, तो फिर वो उलमाए यहूद जो हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान आए और उन्होंने ऐसे अकायद बना डाले तौरात की मदद से, तौरात को ना समझते हुए कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए हैं तो वही यहूद उन्होंने तौरात आगे अपने अकायद पेश किए। उन्होंने कहा हाँ ये जो जीसस आप आगे हैं, हाँ जी मसीह आगे हैं, आप हमारे जीसस नहीं हो सकते, हमारा मसीह नहीं हो सकते, हमारा मसीह तो इस तरह का आना है, बादशाह आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो फिर उस वक़्त आप बताएं, यहूदियों के उलमा ठीक थे, उनकी तारीफें ठीक थी, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ठीक थे? ठीक है जी। और इसलिए मैं बता रहा हूँ अपने अहमदी भाइयों को, गैर अहमदी भाइयों को ख़ास तौर पे, जब खुदा की तरफ से कोई मुरसल आ जाता है, जब खुदा का नबी आ जाता है, तो फिर मौलवियों की तारीफें नहीं चलती होती, फिर उस नबी की तारीफ चलती है। जो नबी ने कह दिया कि मुझे खुदा ने ये बताया है, आपका और मेरा काम है कि उसके ऊपर कहें आमन्ना व सद्दकना। ठीक है जी। बहरहाल आगे चलते हैं जी। हम आपको इन मौलवी साहब की ये जो ऑडियो है ये सुना भी देते हैं, ताकि मौलवी साहब या कोई है कोई ये ना कह दे कि जनाब हमने अपनी तरफ से ये बात बना दी है। ये जनाब मैं शेख मुबारक भाई को साथ ऐड कर लेता हूँ। ये जनाब ऑडियो है जी, ऑडियो नंबर 6, और सुने ये मौलवी साहब ने किस तरह से झूठे तौर पर एक तारीफ को छोड़ा है, ठीक है जी, और फिर बहाने साजियां करते हुए दूसरी तारीफ की तरफ दौड़े हैं। सुने जरा। लेकिन अगर हम खत्म नबूवत की एक तारीफ करना चाहें, किसी को सिखाने के लिए भी खत्म नबूवत होती क्या है, तो हमारे माशरे में इसकी 2 तारीफें चलती हैं। एक तो वही जो आम तारीफ है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा। ये आम तारीफ हर बच्चा जानता है, हमारा बच्चे बच्चे को पता है, हुज़ूर अल्लाह के आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तारीफ है। लेकिन जब फितने ज्यादा हो जाएं और फितनों का तरीका वारदात होता है कि वो अल्फाज के हेर फेर से उलझाने की कोशिश करते हैं, तो फिर याद रखिएगा उस वक्त हमें अल्फाज का चुनाव ऐसा करना होता है ताकि फितना किसी को उलझाकर फितने मुब्तला न कर सके। अब यहाँ भी हमारे यहाँ बहुत से मुनकिरीन खत्म नबूवत के फितने मौजूद हैं, जिनमें सर फहरिस्त फितना कादियानियत है। अब वो लोग क्या करते हैं, एक मुसलमान को उलझाने के लिए इसके सवाल करते हैं। मसलन हमने कहा हुजूर आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो अब इस पर कादियानी एतराज करेगा कि आप आखिरी नबी कैसे हो गए, जबकि मुसलमानों का ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे, तो आखिरी तो ईसा अलैहिस्सलाम हुए, या आखिरी तो वो होता है जिसके बाद नबी कोई ना आए, जबकि हुजूर के बाद तो नबी आ रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, इस तरह उलझाने की कोशिश करते हैं। आम हो जाए तो फिर हमें उसी अंदाज से उसकी तारीफ करनी होती है और उसको समझाना होता है। याद रखिएगा खत्म नबूवत की जो असल और मुकम्मल तारीफ है, ये तारीफ हमने नहीं बनाई कि आपके लिए आपने बना दी है, ये 1400 साल से उम्मत में चली आ रही है।
हमारी पुरानी किताबें जो 3-3, 4-4, 500 साल पुरानी किताबें हैं, जब इन फितना कादियानियत का वजूद भी नहीं था दुनिया में, उस वक्त भी उलमा खत्म नबूवत की मुकम्मल तारीफ वही लिखते आए हैं। और मुकम्मल तारीफ क्या है? उलमा लिखते हैं कि खत्म नबूवत का मतलब यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। यूं कहने के बजाय कि आपके बाद नबी नहीं आएगा, बल्कि यूं कहना पड़ेगा हमें कि आपके बाद किसी को नबूवत दे दी जाएगी। अब ईसा जी मेरे भाइयों, जी आपने देखा किस तरह से इन्होंने खुद ये मानते हुए कि हमारी ये जो तारीफ है उसके ऊपर हमारे खिलाफ जो है वो गोल हो जाता है, अब इन्होंने ये तारीफ तो कर दी, लेकिन सवाल ये है उलमा ने इनको ये तारीफ बता दी है, जिस तरह खाकसार ने अर्ज किया कि अकीदा तो कुरान पाक से उसकी बुनियाद होती है, कुरान पाक से उसकी नस्ल मिलती जो है वो चलती है, कुरान पाक उसकी बुनियाद होती है, उलमा तो नहीं होते। ये कौन सा इस्लाम है जी आपका? आप कह रहे हैं कि उलमा ने भी ये तारीफ दे दी है, सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर आप तो हमें ये सबक अभी पढ़ा रहे थे जनाब, ये अभी सबक पढ़ा रहे थे कि अकीदा जो है वो तो 100% होना चाहिए, 99 अगर ठीक हो और एक गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है? अकीदा छोड़ने से जो है वो कुफर लाजम आता है। जब आपने कुरान पाक छोड़कर ये तारीफ कर दी जिसका कुरान पाक में दूर दूर तक इस तरह की तारीफ नहीं मौजूद, तो फिर जनाब आपका अकीदा जो है वो तो फिर 100% ना रहा। हमारे नजदीक तो आपका अकीदा 0 हो गया है। चलें जी, आपने कहा जी हमारा अकीदा 20% कम हो, आप ना माने है जी, आपका अकीदा चलें जी 1% भी नीचे हो गया है, फर्ज करें, वैसे तो 0 हो गया है यहाँ पे, क्योंकि आपने अकीदा उलमा से लिया है, कुरान पाक को छोड़ दिया है। तो फिर आपके अपने बयान करदा मेयार के मुताबिक जो आप लोगों को सबक पढ़ा रहे थे, आप क्या बने? नंबर 1 काफिर। ठीक है जी, हम नहीं कह रहे, आप खुद माने थे, हमें ना मुर्द इल्जाम ठहराइएगा। दूसरा, आपका अकीदा हो गया 0, क्योंकि अकीदा तो 100/100 होना चाहिए मेरे भाई। अकीदा हो गया 0, तो आमाल का क्या नतीजा निकला? आमाल भी हो गए 0। तो आप चले थे जमात अहमदिया मुसलमान के इन दलाइल का जवाब देने, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो आप जिस्मानी तौर पर नजूल, पहले आपने रफा करवाया, आसमान पे चढ़ा दिया, जो कुरान पाक के बिल्कुल खिलाफ है, और फिर नजूल करवाना चाहते थे, उस अकीदे ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा जनाब। आप तो पक्के पक्के काफिर हो गए आपके अपने मुताबिक। ठीक है जी, तो वो कहते ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये आपकी हालत हो गई है फिर। अच्छा चलें जी, अब तारीफ कहते हैं जी, मुकम्मल तारीफ है जी ये खत्म नबूवत की। ये बताएं कि ये आप कहते हैं कि आप इस तारीख के मुताबिक क्या है जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। अब हमें ये तो बताएं कि नबूवत अंबिया को मिलती कब है? आलमे रवा में मिलती है, पैदा होते वक्त मिलती है, या जब फरिश्ता पहली दफा उनके ऊपर नाजल होता है उनके जिस्मानी वजूद के साथ, तब मिलती है। ठीक है जी, आपके तो अपने लोग इस बात पे जो है वो उनका इख्तलाफ है। कोई कहता है पैदाइश जो है वो पैदाइशी तौर पे नबी जो है वो नबी होता है। ठीक है जी, और फिर आलमे रवा में अगर आप नहीं मानते कि नबूवत तो वहां मिल जाती है, तो फिर आयत मीसाकुन नबीयीन को कहाँ लेके जाएंगे? आप कहते हैं जी किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी। अगर उन वो अरवा जिनको आप मानते हैं कि मिसाकुन नबीयीन हुआ, वो उस पर अंबिया की अरवा नहीं थी, ठीक है जी, बल्कि आम आदमी भी उसमें शामिल थे, तो फिर तो आपको कुरान पाक के उस आयत का क्या तर्जमा करेंगे? लेकिन अगर वो अंबिया की अरवा थी तो नबूवत तो नबूवत को पहले मिल गई थी जनाब। इसलिए आपका ये जो है ना बहाना, और फिर हजरत मिर्जा साहब हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो सच्चे नबी हैं, वो तो आलमे रवा में उनको नबूवत मिल गई थी। अब आपका ये जो वहाँ हिसाब है कि जनाब नबूवत किसी को बाद में नहीं दी जाएगी, ये भी आपका ढगोसा नहीं चलता मेरे भाई। फिर आगे चलते हैं जी।
कहते जी आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। ये कौन सी कुरान पाक की आयत से आपने निकाला है जनाब? कौन सी हदीस में ये लिखा हुआ है? और ये भी आपके बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी, ये कौन सी हदीस में लिखा हुआ है? कौन सी कुरान पाक की आयत में लिखा हुआ है? आपके घर की बातें तो जनाब हम क्यों माने? ठीक है। अच्छा, एक और बात ही है जी प्यारे भाइयों, छोटा सा नुकता। कहते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। सोचिएगा जरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे की वफात पर फरमाया था, लो आशा लकाना सदीकन नबिया। अब आपके फिरकाजात जो मानते हैं कि नबी पैदाइश से ही नबी होता है, अगर हजरत इब्राहीम पैदाइशी तौर पर नबी नहीं थे, फिर उनकी रूह इस काबिल ही नहीं थी नौज़बिल्ला, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फिकरात क्यों कहे? और अगर आपकी रूह इस काबिल थी कि नबूवत जो है वो आप सच्चे नबी बनते जिस तरह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर ये आपका ढकोसला किधर गया कि कोई नबी पैदा नहीं होगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, फौत भी हो गए, ये तारीफ तो फिर आपकी खत्म होगी ना मेरे भाई, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा जी, नबियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा कहते हैं। हमने जिस तरह अर्ज किया, हजरत मिर्जा साहब अल्लाह ताला के जो सच्चे नबी हैं, अल्लाह ताला ने अगर उनको आलम अरवाह में नबी बना दिया था तो फिर तो तादाद में इजाफा हुआ ही नहीं, उसी वक्त सारे अंबिया को पता चल गया था कि मैं नबी हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हम चलते हैं जी, मौलवी साहब ये फरमाते हैं उसके बाद इस तारीफ से मुतल्लिक कहते हैं जी ये जो है खत्म नबूवत की मुकम्मल तारीफ है। ये दिखें सामने लिखा भी हुआ है। सवाल ये है कि ये मुकम्मल तारीफ खत्म नबूवत की आपको किसने बताई है मौलवी साहब? थोड़े तो इल्हाम नाज़िल होते रहे, वही नाज़िल होती है आपके ऊपर, या जिसने ये अपनी किताब में लिखा है, जिन उलमा ने, बड़े काबिल उलमा होंगे, उनमें से किसी एक का हमें बताएं कि उन्होंने ये कहा हो कि मुझे खुदा ने ये खत्म नबूवत की जो है ये डेफिनेशन बताई है। ठीक है जी। अपनी तरफ से एक बात घड़ के जो कि कुरान पाक में मौजूद ही नहीं, आप आवाम को अगर गुमराह करेंगे तो हम इसके ऊपर क्या कहें, सवाए इसके कि आपको याद करवा दें कि जनाब आप खुद ही कहते थे कि अकीदा जो है वो उसमें कमी बेशी अगर हुई तो जनाब क्या होगा मोहतरम, अकीदा छोड़ने से कुफर लाजम आ जाता है, आप काफिर हो जाएंगे। और आप को मुबारक हो हैं जी, शब्बान मीडिया वालों को, और मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ, मुबारक हो जी कि आपने ये जो नई खत्म नबूवत की मुकम्मल तारीफ अपने मुताबिक घड़ी है। आपके खुद अपने बयान फरमूदा असूल के मुताबिक आप क्या हुए, आप काफिर हुए, नंबर 1। नंबर 2, आपके अकीदे सिफर। नंबर 3, आपके अमाल सिफर। हम नहीं कह रहे, ये आपका अपना असूल था। और ये प्यारे भाइयों, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, ये कुरान पाक का मौजज़ा है। जब भी कोई शख्स कुरान पाक की आयत के खिलाफ अकीदा बनाता है, कुरान पाक सामने खड़ा हो जाता है, तो ये हशर होता है फिर इन लोगों का, है जी। फिर ये दौड़ते हैं जो है वो अपनी बातों को फिर तब्दील करने में। अच्छा जी, एक और बात भी है जी, अकीदा की जी मुकम्मल तारीफ क्या है कि आपके बाद किसी को नबूवत नहीं दी जाएगी, वो ऐसा नबी जो पैदा नहीं होगा, वगैरह वगैरह। मौलवी साहब मैं आपको याद करा दें बड़े ही प्यार से एक बात, मोहतरम आप तो आईने पाकिस्तान को मानते हैं ना, हम अहमदी तो आप कहते हैं हम तो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, आप तो मानते हैं ना। चलें जी, आईने पाकिस्तान को देख लेते हैं, ये इंग्लिश में है, ये उर्दू में है। क्या है जी आईने पाकिस्तान क्या कहता है? 1974 की तरमीम फरमाती है, 1974 की तरमीम, जो शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं के खातमुन नबिय्यीन होने पर कतई और गैर मशरूत तौर पर ईमान नहीं रखता, या जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी मफहूम में या किसी भी किस्म का नबी होने का दावा करता है, या किसी ऐसे मुद्दई को नबी या दीनी मुस्लिम तस्लीम करता है, वो आइन या कानून के गराज के लिए मुसलमान नहीं है। ये है जी आपका आईने पाकिस्तान। मौलवी साहब, शब्बान मीडिया वाले मौलवी साहब जी, मेरे भाइयों, ये मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब ये इनका ये है जी इनका बहाना, ये बहाने वाली मुकम्मल तारीफ खत्म नबूवत की।
اور اس میں دیکھیں انہوں نے شرائط لگائی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے جی. کوئی یعنی کہ ان کے نزدیک اس تعریف کے نزدیک ایسا نبی آ سکتا ہے جس کو نبوت دی نہ جائے، یعنی پہلے سے اس کو نبوت مل گئی ہو، ٹھیک ہے، یا ایسا نبی آ سکتا ہے جو کہ پیدا نہ ہو. کیا مطلب جی؟ پہلے سے پیدا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیدا شدہ ایک نبی ہے. لیکن آئین پاکستان، ٹھیک ہے جی، یہ میں اس کو زوم ان کر دیتا ہوں. آئین پاکستان کی ترمیم نمبر 260 کی دفعہ نمبر جو ہے، آئین کی دفعہ 260 کی جو ترمیم ہے، یہ اس کے مطابق خاتم النبیین یعنی ختم نبوت کی جو تعریف کرنی ہے نا مولوی صاحب آپ نے، وہ قطعی اور غیر مشروط ہونی چاہیے، قطعی اور غیر مشروط، اور اس میں کسی بھی مفہوم میں اور کسی بھی قسم کا نبی آپ داخل نہیں کر سکتے. ورنہ آپ ہمیں تو الزام دیتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے. آپ تو سیدھے مندے ہو نا، ٹھیک ہے نہیں، آپ مانتے ہیں نا شبان میڈیا والوں، یہ عرفان محمود برق صاحب آپ بھی مانتے ہیں. تو چلیں جی، اس تعریف کی روح سے یہ جو آپ نے تعریف کی تھی، نہ صرف یہ کہ آپ کا عقیدہ زیرو ہوا، آپ کے سارے اعمال زیرو ہو گئے، آپ کے اوپر کفر جو ہے وہ آپ کے اوپر اس کا اطلاق ہوا، بلکہ آئین پاکستان کے مطابق آپ کیا ہوئے؟ غیر مسلم. چلیں جی، مبارک ہو. اگر ہو سکے تو مٹھائی سے ہی ونڈ دینا آج ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہ بندہ. بہرحال یہ ہے جناب ان لوگوں کے ڈھکوسلے اور اس کے نتیجے. اب اس کے بعد جہاں تک ان کی ختم نبوت کی تعریف تھی، انہوں نے جو عوام کو سمجھانے کی کوشش کی اور کس طرح بری طرح پھنسے ہیں اس میں، وہ الحمدللہ اب مکمل ہو گیا ہے. اب میں جلدی سے آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ چند بہانے لگایا کرتے ہیں. مثلا حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ آپ نے بارہا مولوی حضرات کے منہ سے سنا ہوگا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو شخص اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے، میں جلدی سے گزر جاتا ہوں اس سے، یہ بھی ان کا ایک ڈھکوسلہ ہے، بہانہ ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ یہ جو فتویٰ ہے، پہلی بات تو یہ ہے تفسیر روح البیان یہ امام ابو حنیفہ نے نہیں لکھی تھی، کسی نے منسوب کیا ہے ان سے، ایک بات. دوسرا، ہمیں اصل حالات کا پتہ ہی نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو بندہ دعویٰ کر رہا تھا اس نے ایسے اس قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو جو قرآن سے ہٹ کے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابل پہ ہے. وہ کہتا ہوں میری نئی شریعت آ گئی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لحاظ سے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جناب. ایسا نبی، ایسا بندہ ہے جی نعوذ باللہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ختم المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی میں آ گیا ہوں کہ میں نئی شریعت لے آیا ہوں ہے جی، اور پہلی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، قرآن پاک منسوخ ہو گیا جس کے نزدیک نعوذ باللہ معاذ اللہ. ہم بھی ایسے شخص کے کوئی اس کو جناب نہیں مانگیں گے، اس سے کسی قسم کی کوئی علامت نہیں مانگیں گے. کیوں؟ ہمارے نزدیک بھی جماعت احمدیہ مسلمہ اس یقین کامل پر قائم ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور قرآن پاک آخری شریعت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تشریع نبی ہے. تو اس میں کون سی بات ہے؟ آپ نے کوئی نئی بات یہاں پہ بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر ایک بات بھی آپ پکڑے گئے، لیکن وہ دیکھیں نا مولوی صاحب پھر اپنی پیش تو کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کی پکڑ بھی یہیں سے کرواتا ہے. اب یہ دیکھیں حضرت امام ابو حنیفہ نے چلے یہ فرمایا بھی تھا، یہاں پہ کیا فرمایا کہ اس بندے سے کوئی علامت طلب نہ کرو. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اس بندے کو جا کے قتل کر دو. آپ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کی نسل ختم کر دو. حضرت امام ابو حنیفہ نے تو آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے. اگر یہ بات درست ہے کہ مدعی نبوت کو قتل کر دینا چاہیے جی، انسان اٹھ کے قتل کریں ان کو، تو حضرت امام ابو حنیفہ یہ بھول گئے تھے؟ ذرا غور کیجیے گا. اچھا چلیں جی، یہ ہو گیا جی ان کا بہانہ نمبر 1. پھر ایک اور بات بھی ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے عیسیٰ علیہ السلام نے جسمانی طور پر نیچے نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے، اب حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے آپ کے نزدیک دمشق میں نازل ہوں گے، فجر کے وقت نازل ہوں گے، اندھیرا ہی ہوتا ہے فجر کے وقت پہ جناب. اب پاکستان انڈیا والے لوگ تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے کہ ایک بندہ نازل ہو گیا، ایک نبی نازل ہو گیا.
اب وہ ممکن ہے ان میں سے کوئی پوچھ لے کہ جناب محترم قبلہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ اس کے اوپر، تو پھر اس کو وہ تو بیچارہ پہلے کافر ہو گیا، نہ پوچھ کے ہی کافر ہو گیا. تو اس لیے کچھ تھوڑی سی کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے فتوے یا گھڑ لینا یا ان کو بار بار پیش کرنا جو کہ مذاق ایک طرح سے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو اوپر کیا کہے انسان. اس لیے یہ آپ کا بہانہ بھی ختم ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد جی آگے انہوں نے ایک امام ابن نجیم رحمہ اللہ کا فتویٰ پیش کیا جی، اور کہتے ہیں کہ جی اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں، کیونکہ یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں، اور یہ دیکھیں عقیدہ کی پھر بات وہی ہے. امام ابن نجیم کیا اللہ کے نبی تھے؟ ہم نے عقیدہ ہمیں بتائیں قرآن پاک سے، قرآن پاک سے بتائیں عقیدہ، پھر مزہ ہے نا. قرآن پاک سے آپ کو لوگوں کو الرجی. آپ دیکھیں پیارے بھائی، آپ نے نوٹ کیا اتنی زیادہ سلائڈیں گزر چکی ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت بھی نہیں پیش کی انہوں نے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آگے چلیں. آگے ہیں جی قرآن پاک پہ. بڑی مشکل سے 25 یعنی کہ 31 منٹ کی ویڈیو کے بعد اور 25 منٹ یعنی کہ جب یہ بول چکے تھے تو ان کو قرآن پاک کی آیت یاد آئی. اور حالانکہ دیکھیں ایک احمدی مسلمان، ہم الحمدللہ کوئی کسی بھی عقیدے کی بات ہو، احمدی مسلمان کہاں سے بات شروع کرے گا؟ قرآن پاک سے. پھر وہاں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد پھر آگے بڑھے گا. اور یہ آپ دیکھ لیں دوڑے ہیں قرآن پاک سے دور. اور اب اگر آئے بھی ہیں یہ مجاہدین ختم نبوت، یہ آیت پڑھیں گے جی، یہ انہوں نے آیت پڑھی، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جس طرح انہوں نے اس میں بھی کیا، اس پروگرام میں آیت پڑھی اور اپنی رام کہانیاں سناتے رہے، ادھر گئے ادھر گئے، اور پھر ہلکا سا قرآن پاک کی ایک آیت، اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے، اللہ خیر صلی اللہ. اور بینے ہی یہی انہوں نے کیا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ کیا قرآن پاک کی آیت انہوں نے وہ پڑھی، آیت خاتم النبیین، بلکہ بہت بڑے جھوٹ قرآن پاک کی طرف انہوں نے 2 بولے ہیں جیسے یہ قرآن پاک کی طرف آئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جی، کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس ویڈیو کے 31 منٹ 40 سیکنڈ پر قرآن کے پہلے سپارے سے شروع کریں اور آخر تک جائیں تو قرآن پاک میں 100 کے قریب کہتے ہیں آیات ملتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انہوں نے ابھی ہاتھ ہلا رکھا ہے. بعض جو ہے وہ کہتے ہیں 250 آیتیں ہیں جو ان کی جو تعریف ہے ختم نبوت کی، یہ جو ابھی ہمیں یہ پڑھا رہے تھے، یہ جو تعریف ہے یہ والی ہے جی. کہتے ہیں اس کے بارے میں گویا کوئی 100 آیات قرآن پاک میں ہیں. اس کی کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ لوگ بولتے ہیں، اور ان کو ایک ذرا خدا سے ڈر نہیں لگتا. کوئی حیا نہیں آتی کہ قرآن پاک سے متعلق اس طرح جھوٹ بولنا کس طرح کوئی مسلمان بول سکتا ہے. وہی جو رفاقت بھائی نے بات کی تھی، تحریف کے مرتکب ہوتے ہیں، کھلی تحریف. اچھا، پھر انہوں نے یہ آیت دکھائی اور پھر اس میں بھی دیکھیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا ترجمہ بھی غلط کر دیا، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے. یہ خاتم النبیین کا ترجمہ ہے جناب، یہ تو آپ کی اپنی گھر سے بنائی تشریح ہے. خاتم النبیین اس کا یہ ترجمہ ہے جی، خاتم تے کی جو زبر والا ہے اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو صاحب ہیں، یہ اس سے پہلے کہ حدیث کی طرف جائیں، انہوں نے ایک اور جھوٹ بولا. اور یہ دیکھیں دوبارہ میں بتا دوں، سب سے آخری نبی، اب سب سے آخری نبی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر ہے پھر اسے نکل گئے نا. ٹھیک ہے جی، میں صرف نوٹ یہ چھوٹی بات کرنا تھا. پھر کہتے ہیں یہ ایک اور جھوٹ بولا انہوں نے، کسی قرآن پاک کی آیت کو دیکھیں، سامنے قرآن پاک کی آیت ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ 32 منٹ پہ انہوں نے کہا اپنی ویڈیو میں، کہتے ہیں قرآن بار غور سے سنیے گا، توبہ توبہ توبہ، اتنے جھوٹے لوگ. کہتے ہیں قرآن بار 100 کے قریب مقامات پر فرما رہا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں.
اب بتائیں جی کون سی قرآن پاک کی وہ آیات ہیں 100 آیات جن میں بار بار یہ آیا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ کہیں شاید کوئی دوست خاص طور پہ ہمارے کوئی غیر احمدی جو دوست ہیں وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب میں نے کوئی اپنی طرف سے شاید کہہ دیا ہے. نہیں جناب, ہم تو الحمدللہ پوری ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ سنیں اپنے مولوی صاحب کو, یہ دونوں جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں یہ اس میں سے پہلا جھوٹ ہے. ضابطہ رسول کیا ہے کہ وہاں ناواقفیت یا وہاں جہالت یا وہاں لا علمی یہ عذر نہیں ہوتا. کوئی بندہ کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیا کروں, تو نہ پتہ ہونا یہ عذر نہیں ہے, کیونکہ ضروریات دین ہے, اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. اسی حساسیت کو اگر آپ لے کر چلیں آگے, اس عقیدے کی حساسیت کتنی ہے, اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے, تو قرآن پاک اگر آپ کھولیں گے تو قرآن پاک کے پہلے سپارے سے شروع کریں اور آخر تک جائیں, آپ کو قرآن پاک میں 100 کے قریب آیات ملتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا ذکر فرمایا. اور سب سے مشہور آیت جو سورہ احزاب. جی پیارے بھائیو, پہلا جھوٹ. اب یہ سنیں دوسرا جھوٹ. ولکن رسول اللہ و خاتم النبی, فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے, وہ خاتم النبیین ہے. وہ قرآن بار بار 100 کے قریب مقامات پہ یہ بات فرما رہا ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی, حضور اللہ کے آخری نبی. اور جناب نبی جی میرے بھائیو, اتنا بڑے سری جھوٹ بولنے اور پھر اپنے آپ کو کہنا کہ ہمارے عقیدہ جو ہے وہ 100/100 ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے حدیث کی طرف گئے ہیں, میں جلدی سے گزر جاتا ہوں. یہ پھر حجت الوداع سے متعلق انہوں نے یہ ایک سلائیڈ دکھائی. جی اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, کوئی نبی نہیں ہوگا. آپ کی تشریح بھی مان لیتے ہیں, کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, کوئی نبی جناب وہ پہلے والا آ سکتا ہے بعد والا نہیں آنا. اگر آپ نے مطلقاً آپ نے اس کی نفی کرنی ہے تو پھر مطلقاً نفی کریں, پھر عقیدہ جو آپ کا نزول عیسیٰ کا ہے اس کو چھوڑ دیں. پھر اگر آپ نے ان جو احادیث ہیں ان کے وہی ترجمے کرنے ہیں جو کہ آپ کے آپ عوام کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر آگے چلیں جی. یہ تفسیر ابن کثیر کے لحاظ سے انہوں نے پھر ایک اور یہ حوالہ یہ پیش کیا کہ جی ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام کا دعویٰ کرے جھوٹا, انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے جو کوشش کرنے کی شروع کی, جو مطلب کوشش کی اپنی طرف سے, ہر شخص ٹھیک ہے جی جھوٹا, مفتری, دجال, گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام کا دعویٰ کرے. تو حضرت عیسیٰ آپ کے نزدیک وہ جب آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, 2022 میں آئیں گے یا 2022 کے بعد آئیں گے آپ کے نزدیک؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی آئے نا, یا وصال کے بعد ہی آئے نا میرے بھائیو. تو یہ آپ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ. کچھ بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرتا ہے انسان, اپنے عقائد جو ہیں ان کو تو کم از کم جو ہے وہ کچھ سمجھ لیں. اچھا جی پھر یہ اوتان وہیں پہ آ کے ٹوٹی, وہ جو حضرت سبحان والی جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے, ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب وہی بات ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 30 میں شامل ہیں. آپ لوگوں کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو یہ کہے, گویا کہ جو نزول ہے اس کو تو بھول جانا, ہر بندہ جو ہے وہ اگر وہ کہے کہ میں نبی ہوں کوئی شخص تو وہ جھوٹا ہے جی. اور تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کے 30 جھوٹوں میں شامل ہیں یا نہیں؟ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نزدیک ان 30 جھوٹوں میں شامل نہیں ہیں تو پھر ہمارے نزدیک, کیونکہ قرآن پاک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, ان کی حیات ثابت نہیں ہے, اس لیے جو آنے والا تھا اس نے امت میں آنا تھا, تو اس لیے وہ جو مقام جس کو دیا گیا عیسیٰ کا وہ پھر ہمارے نزدیک بھی وہ ان 30 جھوٹوں میں شامل نہیں ہے. اللہ اللہ خیر اللہ. ٹھیک ہے جی, اصول تو سیم رکھیں نا, گز سیم رکھیں, گول پوسٹ تبدیل نہ کریں. اچھا جی بہرحال یہ تھی پیارے بھائیوں ان احباب کا وہ جو ختم نبوت کا جو انہوں نے کورس تھا, اس کے یہ کہہ لیں کہ پہلے 32-33 منٹ
اور ان کا الحمدللہ کامیاب آپریشن. آخر پہ میں صرف اتنا کہوں گا اس سے پہلے کہ میں دوستوں کو پاس جاؤں اور کال بھی لوں، کہ جس طرح خاکسار نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کے ختم نبوت کورسز کی یہ حیثیت ہے، یہ ان کی اصل میں ویلیو ہوتی ہے. قرآن کے مخالف خود ساختہ تعریفیں کرتے ہیں، ہم نے آپ کو دکھا دیا. خود ہی گول پوسٹ چینج کرتے رہیں گے، خود ہی ایک تعریف کریں گے، خود انہوں نے نہیں گیا تو سانو موافق نہیں پی، چلو جی اور تعریف. ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ تعریف کی جو ختم نبوت کی مکمل تعریف آپ نے کی آئین پاکستان کے مطابق تو وہ بھی پوری نہیں بیٹھتے. آپ پھر اس کو بھی تبدیل کرو بھائی جان. آپ کہو کہ ہم آئین پاکستان کو مانتے ہیں، یا اعلان کریں شبان ختم نبوت والے کہ آپ لوگ آئین پاکستان کو کفریہ مانتے ہیں، آپ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے. وہ اعلان کریں، قولوا قولا سدیدا، سچی بات کریں نا. پھر اگر آپ آئین پاکستان کو مانتے ہیں تو آئین پاکستان کے مطابق وہ جو آپ کی ختم نبوت کی مکمل تعریف ہے وہ آپ کو کافر بنا رہی ہے، وہ آپ کو غیر مسلم بنا رہی ہے. آپ کے اعمال زیرو ہو رہے ہیں، آپ کے عقائد زیرو ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مولوی حضرات جو ہیں یہ ان کے رد قادیانیت کورسز، ابھی تو اس کا آغاز ہے. انشاءاللہ جب بات آگے بڑھے گی، ہمارے کوئی اور دوست انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کا اگلا حصہ پیش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ جن کے بڑوں نے یہ فتوے دی، اب مجھے سمجھ آتی ہیں وہ جو ہم پڑھتے تھے کہ فتوی فتاوی رشیدیہ میں اور ادھر ادھر ان لوگوں نے فتوے کیوں دیے ہوئے ہیں اس طرح کہ جب ضرورت پڑے تو جھوٹ بول دو، کس بسری بھی شک بول دو. ہاں جی، اس لیے دیے ہوئے تھے. ان لوگوں کی روٹی نہیں چلتی، ان لوگوں کی پیٹ پوجا نہیں ہوتی اگر یہ لوگ قرآن پاک کو پکڑیں، اگر یہ لوگ سچ کو نہ چھوڑیں. لیکن جماعت احمدیہ مسلمہ کی محض مخالفت میں قرآن پاک کو چھوڑنے والے لوگ، احادیث نبویہ کو مڑوڑنے والے لوگ، یہ میرے پیارے نبی ان کے پیروکار نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم.